ایک حضرت نے پچھلی ویڈیو پر کمنٹ کیا ہے جو مجھے ٹھیک سے سمجھ تو نہیں آیا، مگر جو میں سمجھ پایا ہوں اس پر میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کمنٹ کچھ یوں تھا کہ شروع میں بات بہت سادہ انداز میں چل رہی تھی، سمجھ بھی آ رہی تھی، مگر بات پھر وہاں سے ادھر ادھر ہو گئی۔ جہاں سے آپ نے یہ کہا کہ اندر کو دیکھنا ہے، یہاں تک سب سمجھ آ رہا تھا۔ اس کے بعد بات سمپل نہیں رہی، اندر کی اہمیت سمجھ آ گئی، مگر آگے سادہ انداز میں کہی نہیں گئی۔ یہاں سے آگے بہت سادگی سے جانا چاہیے تھا میرے خیال میں مائنڈ کے تھرو جا رہا ہوں۔ جب آؤٹ پٹ کی بات ہوئی تو میرا مائنڈ وہیں رک گیا۔ پھر جس دیے یا چراغ کی بات آپ نے کی، میرے مائنڈ نے اسے پھر وہی شکل دے دی جو ہمارے مائنڈ میں مٹی کے چراغ یا دیے کی تصویر ہوتی ہے کہ وہ جل رہا ہے، اور اس کے بعد آگے میں رک گیا۔ اندر جھانکنے یا اندر کے دیے کے جل جانے کے بعد کیا ہوگا، یہ تو آپ نے بتایا نہیں۔ اس بات کو ذرا اس ڈھنگ سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، کبھی جا کر ڈاکٹر سے یہ پوچھتے ہو کہ جب پوری صحت مجھے حاصل ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ ڈاکٹر تو مرض کی ہی بات کرے گا، صحت کو تو جب بھی جانو گے تم خود ہی جانو گے۔ میں نے ان پچھلی 2 ویڈیوز میں یہی بتایا کہ سیلف ریئلائزیشن کی راہ میں کیا رکاوٹیں ہیں، خود تک پہنچنے کی راہ میں کون سی دیواریں ہیں۔ انا جسے تم خود سمجھتے ہو، وہ جو حاصل ہے اسے دیکھ نہیں سکتی، اور جو حاصل نہیں ہے اسے خواہش میں ڈھال کر اسے پوجتی رہتی ہے۔ دوسری چیز جس پر انا چلتی ہے وہ ہے ڈر۔ تم نے جو باہر کمایا ہے، جیسے مکان، گاڑی، نوکری، رشتے، دولت، شہرت، وہ لگتا ہے کہ تم نے کمائے ہیں، اس لیے ان کے جانے کا خوف، ڈر لگا رہتا ہے۔ مگر زندگی، سانس، دھڑکتا دل، یہ تم نے کمایا نہیں ہے، یہ تم خود ہی ہو، یہ تمہارے اندر کی دنیا ہے۔ اس کے لیے کوئی ڈر تمہیں نہیں لگتا۔ سکون اندر کا ہے، جیسے جھیل کے اندر اس کی تہہ میں سکون ہے، کوئی لہر نظر نہیں آتی۔ لگائے نا کبھی غوطہ کسی جھیل، دریا یا سمندر میں، وہاں نیچے گہرائی میں کبھی تمہیں کوئی لہر، کوئی ہلچل، کوئی بے چینی، کوئی بے قراری نہیں ملے گی، کہیں کوئی اضطراب نہیں ملے گا۔ چاہے وہاں تم جتنے بھی ہاتھ پیر چلا لو، شور شرابہ مچا لو، وہاں کوئی لہر، بے چینی تم پیدا نہیں کر سکو گے، مگر سطح پر کر سکتے ہو، زندگی کی جھیل پر۔ کیونکہ تم مسلسل سطح پر ہو تو باہر کی لہریں ہر وقت نظر میں آ رہی ہیں۔ مکان ایک لہر ہے، نوکری ایک لہر ہے، سوشل سٹیٹس ایک لہر ہے، دولت ایک لہر ہے، شہرت ایک لہر ہے۔ لہریں جو تمہاری انا کی کمائی ہیں، جو حواس کا سرمایہ ہیں، ان کا ملنا کامیابی کا احساس پیدا کرتا ہے، کھو دینے کا خدشہ ڈر پیدا کرتا ہے، کھو دینا مایوسی پیدا کرتا ہے۔ مگر زندگی کی یہ جھیل صرف لہریں ہی تو نہیں ہے، لہریں تو بس سطحی سا اظہار ہیں۔ تمہاری حقیقت تو زندگی کی، ہستی کی جھیل ہے۔ سوچو نا، جھیل میں پانی نہ ہو، گہرائیاں نہ ہوں تو لہریں پیدا ہی کیسے ہوں؟ اب بتاؤ، کیا پانی کی گہرائیاں جھیل ہیں یا پانی پر اٹھ رہی یہ لہریں؟ لہریں بس اتنا بتا رہی ہیں کہ جھیل میں پانی ہے۔ پانی مٹ جائے تو جھیل ہی نہیں مٹی، لہریں بھی مٹ گئیں۔ مگر لہریں مٹ جائیں تو جھیل پر 1 ٹکے کا بھی فرق نہیں پڑے گا، الٹا جھیل اپنی اوریجنل ترین حالت میں آ جائے گی۔ آپ کے اس تبصرے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ لہروں کی بات کر رہے تھے تو بات سمجھ آ رہی تھی، جب جھیل کے اندر کی بات کرنے لگے تو بات سادہ نہ رہی۔ بات تو سادہ ہے، مگر بات کی ڈومین وہ نہیں ہے۔ لہروں سے تمہاری شناخت ہے۔ تم نے خود اپنے کمنٹ میں کہا ہے کہ میں مائنڈ کے تھرو بڑھ رہا تھا، اور اندر کے دیے تک جب بات گئی تب تک سمجھ میں بھی آ رہی تھی، مگر اس کے بعد کیا ہے وہ نہیں بتایا گیا۔ او بھائی، اس کے لیے تمہیں جھیل میں اترنا پڑے گا، خود اتر کر دیکھنا پڑے گا۔ دو نہ طلاق اپنی خواہشوں کو، جن دکھوں اور خوشیوں کو اپنی دوڑ کا مرکز بنایا ہوا ہے، چھوڑو ذرا ان کو۔ جن تھاٹس سے تمہاری پوری ہستی لرز رہی ہے وہ بس لہریں ہیں، اور تم لہروں سے ایک ہو۔ جھیل کی لہریں، جھیل کی ہستی میں کوئی ذرا سا بھی طوفان نہیں اٹھاتی، چاہے باہر سے تم دیکھ رہے ہو کہ لہروں کا طوفان آیا ہوا ہے۔ لے جاؤ ذرا اپنی توجہ کو سانس پر، جو زندگی سے جڑنے والا واحد دھاگا ہے۔ لے جاؤ اپنے ڈر کو، اپنے خدشوں کو، اپنی خواہشوں کو دل کی دھڑکن کی طرف۔
जो धड़क कर तुम्हें वो सारे तजर्बे करा रहा है जिन्हें तुम जिंदगी का तजर्बा कहते हो। डॉक्टर से ये बैठकर पूछते रहोगे कि सेहत क्या है, तो वो क्या जवाब देगा? यही ही जवाब होगा ना कि ये दवाइयाँ ले लो, ये ग़िज़ाई शेड्यूल फॉलो कर लो, इतना वक्त फिज़िकल एक्टिविटी कर लो, कोई वर्जिश कर लो, मर्ज़ नहीं रहेगा, तब खुद जान लेना कि सेहत क्या है। क्या तुमने कभी किसी डॉक्टर के ऑफिस में बैठकर सेहत क्या है इस मौजू पर बहस की है? नहीं, डॉक्टर बता ही नहीं सकता कि सेहत क्या है। वो ये बता सकता है कि बीमारी क्या है, वो ये बता सकता है कि बीमारी की वजूहात क्या है, वो ये बता सकता है कि इन वजूहात का ख़ात्मा मुमकिन है, और ये बता सकता है कि इनका ख़ात्मा कैसे मुमकिन है। इसके बाद जो हालत है वो तुम खुद ही तजर्बा करोगे। तुम ये बातें सुन रहे थे, तुम्हारा दिमाग समझ रहा था, क्योंकि बात बीमारियों की हो रही थी। बीमारी में बीमारी को समझ पा रहे थे। ये माइंड, अना, ये नफ्सियात जो इंसान ने डेवलप की है, जिससे वो दुनिया को समझता है, दुनिया को मतलब देता है, ये बीमार है। और आप ये कह रहे हो कि इस बीमारी को डिटेक्ट करने वाले टूल से सेहत डिटेक्ट क्यों नहीं हो रही? थर्मामीटर से बिजली के वोल्टेज मालूम नहीं हुआ करते। ये सादा वजह है। बात वहाँ सादा नहीं रही, आप ये कह रहे हो। बात तो सादा असल में वहीं पर थी, मगर तुम्हारी स्टेट वो नहीं थी। अंदर का दिया जल जाए तो क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता। बीमारियां बताई जाती हैं, सेहतें थोड़ी बताई जाती हैं। सेहतें तो बस जी जाती हैं। झील के तूफान होते हैं जो टीवी पर, मीडिया पर खबरें बनते हैं। पुरसकून झील थोड़ी कोई खबर है, वो तो बस हुस्न की एक मूरत है जिसे आपने आंखों से पीना है। माइंड से ना मैं बता सकता हूँ, ना तुम सुन सकते हो कि अंदर का दिया जल जाने का क्या मतलब है। मैंने पिछली दोनों वीडियोस में सिर्फ उन रुकावटों की बात की, उन दीवारों की बात की, बीमारियों की बात की। अना, माइंड तिश्नगी को जानता है, जो नहीं है उसके पीछे भागता है, जो है उसको भूले रखता है। माइंड, अना डर में जीते हैं, जो हासिल किया है, जो रिश्ते बनाए हैं, जिनकी मिल्कियत का धोखा हो गया है, वो कहीं खो ना जाएं। माइंड, अना टाइम में मूव करती है, और टाइम में हमेशा फना का डर काम करता ही रहता है। 40 साल की उम्र हुई नहीं और मौत के डर ने तुम्हें जकड़ा नहीं। माइंड और अना हवास के डेटा पर काम करते हैं। हवास सारे बाहर की तरफ काम करने वाले टूल हैं। ये है तुम्हारी सेल्फ रियलाइजेशन की राह की रुकावटें। ये हैं वो दीवारें जो तुम्हें तुम तक नहीं पहुंचने देती। ये तुम्हारी बीमारियां हैं, और अगर मैं डॉक्टर हूं तो मुझे इन पर बात करनी पड़ेगी, जैसे कोई भी डॉक्टर करता है। सेहत क्या है वो तुम खुद जानोगे। कब जानोगे? जब ये बीमारियां नहीं होंगी। इलाज के लिए मैं क्या रिकमेंड करता हूँ? वही जो हमेशा से रिकमेंड होता आया है। जागो, मेडिटेशन में डूबो, इबादत में डूबो, मोहब्बत में डूबो। बीमारियों को सर पर ना चढ़ाओ। ख्वाहिश, डर, खौफ, मंसूबे इतने खुद पर हावी ना कर लो कि तुम क्या हो इसका भी पता ना चले। चलो, तुमने सुनना ही है ना कि अंदर क्या है, तो सुनो, मैं बताता हूँ। अंदर सुकून है, ब्लिस है, वकार है, ग्रेस है, फजल है, खुदा है, रूह है। वहाँ टाइम नहीं है, वहाँ दुख और सुख नहीं है, लज्जत और गम नहीं है, मोहब्बत है, अबदियत है, लाज़िवालियत है। अंदर वो प्रोजेक्टर है जिसके बल पर दुनिया की फिल्म तुम चलाकर बैठे हुए हो। वो नूर है जिससे हवास को वो रोशनी मिल रही है कि वो ये राम लीला रचा सकते हैं। अंदर वो हस्ती है जिसे तुम हज़ारों सालों से नाम देने की कोशिश कर रहे हो। अंदर वो बेनाम है जो हर नाम की वजह है। अंदर वो नाआश्कार है जो हर आश्कार की वजह है। अंदर वो राह है जिस पर चलना होता नहीं, बस रुकना होता है। अंदर वो सकूत का समंदर है जो लफ्ज़ों और लेबलों और मछलियों के ड्रामे से उथल पुथल नहीं होता। अंदर वो वॉचर है, वो देखने वाला जो ना फिज़िकल है ना लोकल, जो ना टाइम में काम करता है ना स्पेस में मूव करता है। चलो ठीक है ना, अब बता दिया, तो जाओ ढूंढो अंदर, इनमें से क्या तुम्हें मिल रहा है। मट्टी के दिए की तस्वीर तो तुमने बना ली, बनाओ ज़रा इनकी तस्वीरें। नहीं बनेगी, क्योंकि तजर्बा नहीं है, क्योंकि बीता नहीं है। तस्वीर कैसे बनती है? एक शक्ल तुमने देखी, दिमाग ने नोट की और जहन में रख ली,
बाद में उस जैसी कोई भी तस्वीर आई तो तुमने उसे उसके साथ मिला कर देखा। तुम पेंटिंग बनाओ तो पहले जहन में रखी उसी तस्वीर को देखना पड़ता है। जिन हवास पर तुमने दुनिया का ये सारा ड्रामा खड़ा किया है, जिस माइंड से ज़िंदगी को तजर्बा करने तुम निकले हो, उसकी हकीकत बस इतनी है, वहाँ जो रियल है, अल्टीमेट रियल, वो नज़र ही नहीं आता। फैक्ट वहाँ नज़र ही नहीं आते। उससे पहले ही दिमाग की तस्वीर तुम्हारे शऊर पर कब्जा कर लेती है। इन हकीकतों की तस्वीर कैसे बनाओगे? क्योंकि पहले से कोई इमेज दिमाग में मौजूद ही नहीं है। कभी अगर मोहब्बत छू कर गई है, कभी अगर मेडिटेशन में कहीं गहरे उतरे हो, कभी अगर इबादत दिल से हुई है, इनको भी छोड़ो, कभी अगर कोई साइकेडेलिक तजर्बा भी तुम्हें हुआ है तो तुम्हें पता चल जाना था। ये सवाल नहीं उभरना था जो उभरा है। मगर दिए की तस्वीर तुम बना सकते थे, बना ली, क्योंकि देखा भाला है। स्पेस को कैसे तराशोगे? गम और खुशी दोनों से आज़ाद हालतों को इमेजिन कैसे करोगे? न्यूट्रल तो तुम कभी होते ही नहीं, हर वक्त या दुखी हो या सुखी हो। झील की सतह पर हर वक्त लहरें हैं। तुमने झील को कभी खामोश देखा ही नहीं, स्टिल जिया ही नहीं। यकीन मानो यही माइंड स्टिल हालत में वही अंदर होता है जिसके बारे में तुम पूछ रहे हो। अब बताओ ज़रा, तुमने कब माइंड को स्टिल हालत में तजर्बा किया है? सूफी ऐसे माइंड को कहता है प्योर माइंड। ये कोई ऐसा टूल नहीं जिससे तुम नफरत करो। ये टूल कोई इन इट सेल्फ बुरा या शैतान नहीं, ये इम्कान है। इम्कान को यूटिलाइज करने वाले पर डिपेंड करता है कि वो कैसे इसे इस्तेमाल करेगा। जहन से दुश्मनी की बात नहीं हो रही, इस्तेमाल की बात हो रही है। तुम क्यों ये सवाल खुद से नहीं करते कि मैं इंफॉर्मेशन लिए जा रहा हूँ? हर रील, हर वीडियो, हर रूहानी किस्म की ऐसी नाम निहाद वीडियो मुझ में कुछ इन्फॉर्मेशन तो बढ़ा जाती है, सुकून देकर क्यों नहीं जाती? मुझे बताओ, तुमने कभी ज़िंदगी में ये बर्दाश्त किया है कि तुम्हारे घर में कोई आकर कूड़ा फेंक जाए? कभी नहीं। मगर तुम जिस टूल से ज़िंदगी को जीने निकले हो, उसमें सबको कूड़ा फेंकने की इजाज़त क्यों दे रखी है? कोई भी आकर तुम्हें कुछ कह दे, बुरा या भला, तुम्हारा जहन इज्जत से सब कुछ संभाले जा रहा है। मोबाइल हाथ में है और रीलें मुसलसल चल रही हैं और तुम सब अच्छा बुरा संभाले जा रहे हो। अपने नकली बाहर वाले घर में जहां तुम कभी रहते ही नहीं, वहां ये बर्दाश्त नहीं करते। माइंड कि जहां तुम हो वहां कुछ भी डाले जा रहे हो। ठीक वही रवैया जो अपने घर के लिए तुमने इख्तियार कर रखा है, वो रवैया इख्तियार करो ज़रा अपने जहन के लिए, फिर देखो क्या होता है। ना करो अलाउ हर इंफॉर्मेशन को। आज के दौर के इंसान के माइंड के लिए मैं एक मिसाल दूं जो तुम्हारे जमालियाती एहसास को चाहे बुरी लगे, मगर हकीकत यही है। कुत्ता जब पागल हो जाता है तो वो हर चीज़ को काटना भिगोड़ना शुरू कर देता है, सामने आने वाली हर चीज़ पर टूट पड़ता है। और ये निशानी होती है इस बात की कि कुत्ते की मौत करीब है, या उसे कोई बाहर वाला मार देगा या वो इस पागलपन के हाथों खुद मर जाएगा। इंसानी दिमाग भी अब वहीं पहुंच गया है। तो करो कोशिश जागने की, दो ज़रा 10 दिन का खुद को ब्रेक, लगाओ ज़रा इन्फॉर्मेशन पर पाबंदी, रोको खुद को हर किस्म की इन्फॉर्मेशन के सामने एक्सपोज होने से। मैं ज़्यादातर सवालों के जो मुझसे पूछे जाते हैं व्हाट्सएप पर या वीडियोस के कमेंट में, उनको इग्नोर करता हूँ। इस सवाल को इग्नोर करने को मेरा दिल नहीं किया। ये सवाल ओरिजिनल था, हकीकी सवाल था। हो सकता है मैंने अंदाज कुछ तुर्श इख्तियार किया हो, मगर ये उस डॉक्टर की मजबूरी समझकर तुम लोग भी इग्नोर कर दो जो सर्जरी के लिए छुरी उठाता है। अब चूंकि इस मौजू पर बात चल निकली है तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि मैंने 10-10 दिनों के मेडिटेशन कैंप के हवाले से मंसूबे बनाना शुरू किए हुए हैं, जिसमें वो लोग शामिल हो सकते हैं जिनके जहन में ये सवाल है जो इस कमेंट में पूछा गया है। मगर ये 10 दिन पहले बता दूं कि आसान नहीं होंगे। जो ज़िंदगी तुम जी रहे हो उस ज़िंदगी के लिए तो बिल्कुल भी आसान नहीं होंगे। ये मोबाइल से पाक होंगे, सिगरेट नोशी से पाक होंगे, बातों से पाक होंगे, सवालों से पाक होंगे, हरकत से पाक होंगे। तुम्हारी अना के लिए ये जेल जैसे 10 दिन होंगे। अगर हिम्मत है, अगर हौसला है, बाहर के शोर और लहरों से पीछे देखने की तलाश है, तो आप इन कैंप्स में शिरकत कर सकते हैं। जब इस हवाले से हमारी तैयारियों को फाइनल शक्ल मिल जाएगी तो वीडियो के ज़रिए आपको इत्तला दे दूंगा। इस पर मैं पूरी तफसील से एक वीडियो बनाऊंगा। अभी ये इन्फॉर्मेशन देने का मकसद बस इतना है कि ज़हनी तैयारी कर लें। सवाल जवाब और इन्फॉर्मेशन के ज़रिए
इस अंदर के दिए तक रसाई कम ही लोगों को मिलती है। दूसरी वीडियोस को तो छोड़ें, खुद मेरी वीडियोस को भी सीरियस लेना छोड़ दें। मैं तो खुद कहता हूँ ये वीडियोस कोई इन्फॉर्मेटिव वैल्यू नहीं रखती। इनको गाइडेड मेडिटेशंस के तौर पर लें। 10-20 मिनट ये वीडियो सुनकर अगर पीसफुलनेस, इत्मीनान को महसूस करते हो, अगर सुकून और सकूत का कोई एहसास जागता है, तो यकीन मानो तुम में वो पोटेंशियल मौजूद है कि ज़िंदगी का फ़न तुम सीख सको। लेकिन अगर सिर्फ ज़हनी ख़ारिश होती है, सवाल उभरते हैं, अपने अकीदे जागते हैं, उन अकीदों के साथ इनका कंपैरिजन कर पाते हो, तनकीद कर पाते हो, तो ये वीडियोज़ आपके लिए हरगिज़ भी मुफीद नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि इन वीडियोज़ पर तनकीद ना करें, सवाल ना करें, ज़रूर करें। ये भी माइंड को प्योर करने का एक रास्ता है। इसका तरीका ये है कि एक दफ़ा जब ये वीडियो अपलोड हो, इसे बिना किसी मकसद, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के हसूल की ख्वाहिश के सुन लें, गाइडेड मेडिटेशन बनाकर सुन लें, फिर दूसरी दफ़ा सुनें, अब तनकीदी नज़र से। अब तनकीद भी करें और सवाल भी करें। हमने तो इसी तनकीद और सवाल और जवाब के लिए अलग से एक चैनल बनाया हुआ है जिसका नाम है ईशा पॉडकास्ट। अपने सवाल ज़रूर करें, जैसा भी सवाल उठ रहा है। कोई सवाल ना अहम है ना गैर अहम, ये भी सीकिंग की एक राह है। मगर पहली और बुनियादी चीज़ बस एक है, वो हो तुम्हारा बेदार होना। तुम जागो, माइंड को, जिस्म को और इससे जुड़ी ज़िंदगी को पूरा और कामिल जियो। ईशा पॉडकास्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में मौजूद है। इसको भी जाकर देखें, जहां ऐसे ही सवालों के जवाब दिए जाते हैं। बाकी 10 दिन के मेडिटेशन कैंप के लिए तैयारी करना शुरू करें। हम इसको जल्द ही करेंगे।